Good morning, guys. My name is Tanish. Welcome to the quarantine school. So, today we are going to start with class 12, next chapter of maths, that is determinants. We would be uploading 2 to 3 more videos of this chapter because this chapter is actually big. So, the last video that you guys saw was of matrices, and if you have not seen it, you can check it in the description down below. I'll forward a link out there. So matrices is actually the basis of determinants. So you guys have to go through matrices and then determinants would be easy for you because that's like the basics. Okay, so just a second. Okay, so today we will start with determinants. Let's go. So, what did we learn in matrices? That see, this is a matrix. Okay, this is a matrice. We can see that this is 2, 3, 5 minus 6, 0, 4. A matrice has this type of brackets, the square brackets that we guys might say. So, it has rows and columns. So, for determinants, it is very important that we should have a square matrice. Okay, a square matrice is needed. Now, what is a square matrice again? When the number of rows is equal to number of columns, then we would say that it is a square matrix. Okay, let's take 3 examples here. This is a square matrix as well as this and this as well, because this is the rows and columns are equal, 1 and 1. This is 2 into 2, this is 3 into 3. So this is 3. All these 3 are square matrices. Okay, now let's go for determinants. How to represent a determinant? First of all, a determinant would be represented by this triangle symbol, or otherwise these type of mods. Okay, now students generally get it confused. They say this is modulus, this is not mod, this is a this is a determinant. I'm really sorry, this is a determinant. A matrice, I'll just show you. A matrice has square brackets. Okay, I'm trying my best to draw with this mouse. So if there is this type of square bracket, then this is a matrix. Okay, this is a 1 into 1 matrix. Whereas if we remove these things, then this mod type of symbol make it a determinant. This is a determinant, this is a determinant. So now we will try to find the value of these determinants. Okay, so the value of the determinants I will show you on my book. Let's go. Okay, so first determinant that we had was 1, 2, 4, 5. Okay, sorry, मेरा 5 थोड़ा गंदा हो गया. 1, 2, 4, 5. So how should we find it out? This matrix into this into this. So finally what can we get is equals to 1 into 5. I'll put this in bracket. इसको ब्रैकेट में डालते हैं so that multiplication कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, easy होगा समझने के लिए. माइनस, ओके, माइनस लगाना है ये वाले के बीच में, और यहाँ पे आएगा 2 into 4. 2 into 4. सो यहाँ पे कैसे लिखेंगे? 5 1 जा 5 minus 4 2 जा 8 equals to -3. ओके, दिस इज द आंसर. सो ये डिटर्मिनेंट का आंसर है, ये -3. एग्जाम में इतना भी लिखा, फुल मार्क्स, क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा अगर आया भी तो. सो वेरी इजी. ठीक है, सो यहाँ पे हमने क्या किया? फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट व्हाट वी डिड वाज, ऊपर से नीचे आए. क्या क्या? ऊपर से नीचे आए, ऊपर से नीचे आए. ओके, वेरी इजी. ऊपर से नीचे आए, ऊपर से नीचे आए. लेट्स टेक द अदर एग्जांपल इन द स्लाइड दैट वी हैड. साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा. ठीक है, क्या बोला मैंने? ऊपर से नीचे आना, ऊपर से नीचे आना. सो सिमिलरली यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे. सो इक्वल्स टू साइन थीटा इंटू साइन थीटा वी राइट साइन स्क्वायर थीटा, माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा वी राइट कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है, अभी यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं. ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है हमने, वी हैव लर्न इन ट्रिग्नोमेट्री that sin theta plus sin square theta plus cos square theta equals to 1, but here we have minus. okay, so यहाँ पे minus का क्या लिखना है? we can convert sin into cos या cos into sin. we know this कि अगर sin theta है तो it is 1 minus cos square theta, और cos theta है तो 1 plus cos cos square theta है तो 1 minus sin square theta. so now in this case अगर तुमने यहाँ तक भी आंसर छोड़ा, if you leave it till here, फुल मार्क्स, कोई मार्क्स काटने वाले, इट इज सुपर इजी.
वरना यू कैन गो वन स्टेप अहेड सो दैट टू प्रूव अदर्स कि यू आर अ वेरी गुड स्कॉलर एंड तुमने बहुत कुछ पढ़ा है. सो वील राइट 1 माइनस cos square theta minus cos square theta. So cos square theta minus cos square theta, that is 1 minus 2 cos square theta. ठीक है. सो ये हो जाएगा सुपर इजी गाइज. इधर तक छोड़ा तो भी फुल मार्क्स, इधर तक लिखा तो भी फुल मार्क्स. वेरी गुड. ओके, सो हमने अभी देखा कि हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स विद 2 अभी हम जाएंगे डिटर्मिनेंट्स 3/3 का. ठीक है, ये है 3 × 3 का डिटर्मिनेंट. अरे यार ये तो प्लस हो गया, सॉरी. दिस शुड बी मल्टीप्लाई 3 × 3. Sorry, I don't have a pen. I can't write properly. I'm just trying my best to write with the mouse. So this is a determinant of 3 × 3. So now let's find the value. So सबसे important, now let me tell you. Let's take 0. Okay. अब इस 0 का वैल्यू रहता है. ओके, हर चीज का वैल्यू रहता है. कोई 0 कोई हीरो हो, डजेंट मैटर, हर चीज का वैल्यू रहता है. सो लेट्स टेक 0. 0 का पोजीशन हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? A11. ओके, A11. ये 1 क्या है? I. लेट्स कंपेयर इट टू I एंड J. ओके, इसके नीचे लिख दिया मैंने I एंड J. सो A11 को कंपेयर करना है. सो अभी हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे A11? सो अभी वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A. सबसे इंपॉर्टेंट चीज दैट वी गाइज विल रिमेंबर इज C इंटू मल्टीप्लाई बाय -1. वाह वाह, मेरा हैंडराइटिंग इतना भी गंदा नहीं है. C रेज टू -1, C इंटू -1 रेज टू I प्लस, अभी यहाँ पे प्लस है, एंड J. ओके, C रेज टू I प्लस J. I'll make this I a little better and screwed it up. It's fine, ये I समझ रहा है, तुम लोग को पता है, इतने भी गधे नहीं हो. हाँ. So C raised to I plus J. अभी now let's start. So the value, अभी सबसे पहले we'll open it in this form. Okay, मतलब ऐसा ओपन करेंगे. So वैसा ओपन करने के लिए एकदम बेसिक से सिखाऊंगा गाइस. जस्ट मतलब ध्यान देते रहो, सब समझ जाएगा. बहुत इजी है, कुछ हार्ड नहीं है इसमें. सबसे पहले हम लेंगे 0. ओके, 0 लिखा, मतलब 0 की जगह C है. अभी 0 का पोजीशन है 1 1. ओके, I प्लस J, 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2. सो -1 रेज टू 2 क्या हो गया? इवन नंबर. पॉजिटिव तो है ही, इवन नंबर हो गया. सो इवन नंबर है तो हम यहाँ पे जो -1 है तो उसका माइनस साइन चला जाएगा. सो विल राइट जस्ट 0, और 0 का ये रो और कॉलम दोनों गायब कर देंगे. 0 का रो और कॉलम दोनों गायब कर देंगे. सो वी आर लेफ्ट विथ अ 2/2 का ये मैट्रिक्स, ये बॉक्स, ये डिटर्मिनेंट. ओके, मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट को दोनों चलता है, बट डिटर्मिनेंट कब बोलते हैं? जब वी हैव टू फाइंड अ वैल्यू. सो अभी हम बोलेंगे दिस इज अ डिटर्मिनेंट दैट वी आर लेफ्ट विथ. ओप्स सॉरी, ये मैंने मैट्रिक्स का बना दिया, ये ऐसा नहीं आएगा. हाईलाइटर नहीं यार, पेन. So we are left with this, that is 0 - 3 3 0. So यहाँ पे वही लिखा 0 - 3 3 0. Now ये था फर्स्ट का. Now let's rub this. Now we'll choose for 1. Okay, अभी 1 का पोजीशन क्या रहेगा? 1 2. Okay, so 1 + 2 वैल्यू क्या बनेगा? वैल्यू विल गेट 3. 3 इज अ ऑड नंबर. ओके, पॉजिटिव ऑड नंबर. सो माइनस साइन गायब होगा? नहीं, माइनस साइन वैसे ही रहेगा. सो वी कैन सी हियर माइनस. सो 1 के आगे हम लिखेंगे -1, एंड फिर ये एंड ये, इसका रो एंड कॉलम दोनों मिटा देंगे. सो हम ये दोनों निकाल लेंगे. एक टी बन गया, देखो मेरा नाम तनिष, टी बन गया. So हम we are left with -1 - 3 2 0. So we'll write here -1 - 3 2 0. Now same with 2. अब यहाँ पे क्या होगा? 3 and 1. So 3 1.
हो गया 4, i प्लस जे हो गया 4, 4 मतलब -1 वापस गायब हो जाएगा, विल राइट हियर 2, और 2 के साथ एक मिनट, आई जस्ट शो यू दैट वंस अगेन, गायब। सो 2 के साथ रो गायब, कॉलम गायब, हो बचा क्या, ये डिटर्मिनेंट। सो इसका डिटर्मिनेंट बोलना है, सो विल राइट -1 0 -2 3। ओके, नाउ सबसे पहले 0 इंटू एनी नंबर 0 होता है, सो इसका पूरा ये अपन कट करके लिखेंगे क्या, 0। ओके, पूरा हो गया 0। अब -1, मैंने लास्ट लेक्चर में क्या बोला था, ये दोनों मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो वही यहाँ पे किया वापस, -1 वैसे का वैसा लिखा, -1 इंटू 0 हो गया 0, 0 इंटू एनी नंबर 0, माइनस ऑफ 3, -3 इंटू -2। अभी सबसे पहले माइनस इंटू माइनस, माइनस साइन गायब हो गया, लेट्स कीप इट असाइड, 3 इंटू 2 6, सो -6। ओके, सो यहाँ पे -6 लिखा, प्लस 2 इंटू -1 इंटू -3 हो गया -3, माइनस ऑफ 2 इंटू 0, 0 इंटू एनी नंबर इज 0, तो हो गया -3। सो we are left with -1 into -6 plus 2 into -3. So that is -6 into -6 equals to 0. 6 minus 6 is equals to 0. यहाँ पे मिल जाएगा अंडा, जो एग्जामिनेशन में बहुत बच्चों का आता है। आएगा आएगा आराम से, इतने जल्दी घाई नहीं है अपने को, सबको 0 मिलेगा, आराम से कटेगा भी, बच्चों में बटेगा भी। सो ये हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल। ओके, आईजे का ये सब क्लियर कर दिया। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने ये वाला इससे डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाला था, बट ऐसा जरूरी नहीं है। ओके सॉरी, इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि हम हमेशा ये ही फॉलो करें। अगर तुमको इजी लगता है, यू कैन गो इट बाय दिस वे एज वेल, ऐसा। ओके, सो अभी इसमें हम लोग ऐसा जाएंगे। ओके, इन दिस क्वेश्चन, सो हाउ वुड वी स्टार्ट, सबसे पहले 2 लिखा, 1 1 हो गया स्क्वायर, तो -1 माइनस साइन कैंसल, बचा क्या, ये गायब हो गया, ये गायब हो गया, वी आर लेफ्ट विद दिस डिटर्मिनेंट, सो वो वैसे का वैसा लिख दिया। अभी नेक्स्ट क्या है, 0, सो 0 का ये निकाल दिया, ये निकाल दिया, 1 और 2 बचा, 2 1 हो गया 3। ओके, -1 रेज टू 3, ऑड नंबर, माइनस का साइन वैसे का वैसा रहेगा, सो वील राइट -0, और 0 लिखने के बाद द लेफ्ट आउट थिंग्स, दैट इज -1 -2 -5 एंड 0, वो वैसे का वैसा लिख दिया, वो हो गया। नाउ 3 में वापस ये लिखेंगे, बचा ये 4, और वो वैसे के वैसे लिख दिया। नाउ द सोल्यूशन इज 2 इंटू इसका, सो 2 इंटू 0 इज 0, -5 -1 इज 5, और वो -5 वैसे का वैसा लिख दिया। 0 इंटू एनी नंबर इज 0, विल स्ट्रेट अवे राइट इट एज 0, ये सीधा ऐसा कट ही कर देंगे। ओके, ये 0 हो जाता है, सो इसका वैल्यू होता है 0, तो ये 0 लिख दिया, +3, ये हो गया 1, -2 इंटू 2 इज 4, this is -2 into 2 is -4, but minus of -4 that will give us +4, तो ये हो गया 5, 5 into 3 15, 2 into 5, 2 into -5 will -10, तो ये हो गया +5, सो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू है +5। अभी कुछ डरने का बात नहीं है, हमने ये ऐसा निकाला, ठीक है। अगर हमने ये वैल्यूज ऐसा निकाला होता, या फिर ऐसा निकाला होता, या फिर ऐसा निकाला होता, या ऐसा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, किधर से भी निकालो, बस एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। ओके, सो वो कैसे भी निकाला, उस हर चीज से वैल्यू -5 ही आना था। सो अभी इट इज कंप्लीटली ऑन यू, यहाँ पे सॉरी, हाँ, कंप्लीटली ऑन यू। यहाँ पे तुमको 0 नहीं दिख रहा था, वेरएज इधर एक 0 है, तो मतलब एक पूरे मैट्रिक्स का कैलकुलेशन खत्म हो जाता है ना, तुमको कैलकुलेट करने का जरूरत ही नहीं है। सो हम लोग ये वाले मेथड से निकाला, अगर तुमने इधर से भी निकाला होता, सेम, नो बिग डील गाइस, इट इज वेरी इजी, खत्म हो गया। सो नाउ लेट अस गो विद द एक्सरसाइज क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, ये हो गया डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करना। अभी हम लोग ने मैट्रिक्स में ढूंढा था, दैट मैट्रिक्स यहाँ पे ये ऐसा कॉलम रहता है, ये ऐसा कॉलम रहता है,
सो इसका यूजुअली हम लोग का भी ये फर्स्ट क्वेश्चन, पहले ये तो भूल जाते हैं, ये और ये उसका सोल्यूशन है, ठीक है, ये भूल जाते हैं, अभी इसके पास ध्यान नहीं देते, पहले सिर्फ इस क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते हैं। ओके, सो यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि मैट्रिक्स सॉल्व किया है। ओके, लास्ट चैप्टर था मैट्रिक्स, बट ये है डिटर्मिनेंट, क्योंकि यहाँ पे ऐसा वाला ये जो 4 लाइंस है वो नहीं है, यहाँ पे मॉड जैसा सिंबल है। ओके, सो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर ये मैट्रिक्स रहता, ओके, अगर ये मैट्रिक्स रहता, बहुत इजी था, x का वैल्यू 1 आता। ओके, क्योंकि 2 into 1 कंपेयर करना है दोनों मैट्रिक्स, क्यों अगर यहाँ पे वो टाइम पे 6 होता तो भी, ओके, क्योंकि ये 6 है, ये ऐसा है, तो यहाँ पे अगर मैट्रिक्स रहता x का वैल्यू 1 आता, बिकॉज 2 into कंपेयरिंग 2 इज इक्वल्स टू 2x, x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1, कंपेयर करना इजी हो गया। बट दिस इज नॉट अ मैट्रिक्स, दिस इज अ डिटर्मिनेंट। ओके, दिस इज अ डिटर्मिनेंट, देखो यहाँ पे ब्रैकेट वाला सिंबल नहीं है, सो दिस इज अ डिटर्मिनेंट। सो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या करना है, वही 2 into 2 डिटर्मिनेंट का वैल्यू ढूंढने आता है, 2 into 1 माइनस 4 into 5, वैल्यू लिख दिया, इज इक्वल्स टू 2x into x, 4 माइनस 4 into 6, वो लिख दिया, ये माइनस है। सॉरी अगर क्लियरली नहीं दिख रहा होगा तो, पीपीटी इज नॉट रियली गुड, क्वालिटी थोड़ा कम है, आई नो, रियली सॉरी। सो ये सब वैल्यू सब्सटीट्यूट किया, यहाँ पे आया 2 माइनस 20 इक्वल्स टू 2x² माइनस 24, ये हो गया इन दोनों का, ये वो साइड चला गया, 2x² इज इक्वल्स टू 6, सो x² इज इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √3। ओके, प्लस माइनस √3 x का वैल्यू, दिस इज वेरी ट्रिकी। अगर ये इसी जगह पे मैट्रिक्स होता तो x का वैल्यू कुछ और रहता, बट दिस इज नॉट अ मैट्रिक्स, दिस इज अ डिटर्मिनेंट। ओके, सो इसलिए x का वैल्यू आया प्लस माइनस √3। ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में भी आ सकता है कि बताओ वैल्यू क्या है। सो वेरी इजी गाइस, तुम लोग अभी मचा दोगे, मेरे को पता है, दिस इज वेरी इजी। ओके, यू गाइज आर वेरी गुड इन स्टडीज, बस सेल्फ मोटिवेशन रखा करो, ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी ये यहाँ पे फिलहाल सेम चीज करना है। देखो यहाँ पे वी कैन सी 3 है, 3 है, 5 है, 5 है। अगर यहाँ पे मैट्रिक्स होता अगेन तो x का वैल्यू क्या रहता, 2, बट दिस इज नॉट अ मैट्रिक्स, दिस इज अ डिटर्मिनेंट अगेन। सो डिटर्मिनेंट का वैल्यू वापस सर्च कर कैसे करना है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू ढूंढना है, ये इंटू ये मल्टीप्लाई माइनस ऑफ ये इंटू ये, सेम इज इक्वल्स टू ये इंटू ये मल्टीप्लाई इन माइनस ऑफ ये इंटू ये, वैसा लिखा, x का वैल्यू 2 आ गया। ओके, सुपर इजी, सुपर 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 डुपर इजी, कुछ डरने का बात नहीं है गाइस, वेरी इजी, मचा दोगे तुम। ओके, सो ये हो गया। नाउ एंड ऑफ द चैप्टर नहीं है, ये एंड ऑफ द चैप्टर नहीं है, एंड ऑफ द वीडियो है। चैप्टर कौन लिखा बे, चैप्टर गलत, बहुत पढ़ना है, बहुत 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 ज्यादा पढ़ना है, अभी बहुत कुछ बाकी है। यू गाइस हैव टू स्टडी, दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। मैं लिखेगा VID, विड, क्या बकवास लिखा है, ठीक है। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ये पीडीएफ का मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम लोग डाउनलोड कर पाओगे। सॉल्व द एक्सरसाइज गाइज, आई गेस फर्स्ट एक्सरसाइज का मैंने एवरी क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया है, सो नॉट अ बिग डील, वेरी इजी। श्री